Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 6 in the errors in measurement. Uh, Now, in this lecture, we will try to solve a question in which we will understand how we can calculate the mean absolute error, how we can calculate the absolute error, we can calculate the this relative error and the percentage error. So this is in continuation of the lecture number 5, and the question is, this is the first question, question number 1. And this question, I have taken this question from the NCERT book, from the chapter of units and measurement. And with this question, you will be able to understand how we can calculate the absolute error, how we can calculate the mean absolute error, what is the percentage error, and what is the relative error. And so the question reads, the time period of a pendulum is the time period of a pendulum in successive measurements. Is 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42, 2.42 seconds, 2.71 seconds, and 2.80 seconds, and 2.80 seconds. The time period of a pendulum in successive measurements is 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.8 seconds. Calculate the absolute error, relative error, calculate the absolute error. They have asked for to calculate the absolute error, but here I am adding one more point, or you can say one more measurement which needs to be measured, that is called the mean absolute error. Mean absolute error relative error and percentage error. So these are the four important errors which needs to be calculated in this question. And normally the questions which you will be getting in the board and the NEET examination will be asking you to calculate any one of these. Maybe they will ask you to calculate the mean absolute error and the relative error, or they can even ask you to finally simply find the value of percentage error. So now here you do not know the true value. You know the 5 readings of the time period of a pendulum. So what we will do is, we will find the arithmetic mean, that is AM, arithmetic mean of these 5 time periods. That is 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80. This question is available in the NCERT book of class 11 in the chapter of units and measurement 1, 2, 3, 4, 5. So the arithmetic, the sum of these 5 is equal to 13.12 divided by 5, so which will give you a result of
we just divided 2.624 seconds. Now here a very important concept will be applied here, and that is the concept of significant figures, which we have studied in the lecture number 1. See here, there are 5 measurements, and the number of significant figures or the digits in these 5 figures are 3 in all the 5 measurements. So the final answer will also have the significant figures, which will be equal to 3. Here you will find that in this answer the number of significant figures is 4, 1, 2, 3, 4. But we have to find the answer. Our answer should contain only 3 significant figures. रूल ये होता है कि अगर आपके ये 5 हैं, इसके अंदर जो वो नंबर जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वही हमारे आंसर में भी होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या है, अगर सब बराबर है तो जो भी आपकी यहाँ पे 3 है तो आपके आंसर में भी 3 होना चाहिए. अगर इसमें फॉर एग्जांपल किसी एक में अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होता तो मेरे आंसर में भी यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते. बट यहाँ पे क्योंकि 3 है, सभी में 3 है, तो मेरे फाइनल आंसर में भी आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होने चाहिए एज पर द रूल फॉर carrying out the arithmetic operations with the significant figures. ये आपको रूल है, हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है. सो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.62 seconds. So this is the most important step here. 2.62 is the arithmetic mean of the time periods of this pendulum. Now this will be taken as the true value because we do not know the true value, and we assume that the arithmetic mean of these 5 values will be very close to the true value, so we take it as a true value in order to calculate the absolute error. So absolute error, let us say that is A1, that is equal to mod of, that is the measured value is how much? It is 2.63 minus 2.62, which is equal to 0.01 seconds. Second thing, A2, this will be equal to 2.56, माइनस करिए 2.62 से, ये मॉड लिया तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 6 0.0 ये होगा सेकंड्स. इसका वैसे आंसर तो आपका नेगेटिव होगा, पर मॉड लिया है तो ये पॉजिटिव होगा. मॉड क्यों लिया है? बिकॉज एरर इज अ डिविएशन, तो वहाँ पे आपका ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट. E3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.42 माइनस 2.62, सो दिस इज इक्वल टू, आप इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ 0.20 seconds. Now the fourth absolute error is equal to 2.71 minus 2.62. So this is equal to what? This is equal to 0.09 seconds. And the last one, that is A5, which is equal to 2.80 minus 2.62. So this will be equal to 0.18 seconds. So these are the absolute error of the individual reading. ठीक है, ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, तो ये वाला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया. हमने वी हैव कैलकुलेटेड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजरमेंट. एब्सोल्यूट एरर इज ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? दिस विल बी द एवरेज ऑफ दीज 5 रीडिंग्स. सो मीन
मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो हमारा इसका होगा 0.01 प्लस 0.065 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। इसको हम पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो द फाइनल आंसर इज, अगर आप इसको ऐड करेंगे 0.7 दैट विल बी इक्वल टू 0.54 आ जाएगा। 0.54 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। So the answer which is coming out to is equal to 0.108 seconds. Okay, now आप यहाँ देखिए, इधर अगर हम इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर में देखेंगे तो इसमें जो यहाँ अगेन we have to apply the rule of significant figures which is carried out with the arithmetic operation, ठीक है, which is carried out for the arithmetic operation. So यहाँ पर significant figures हमारी हैं, यहाँ पे कितनी है, as per the rule जो भी डेसिमल नंबर होता है राइट साइड में जो जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो होता है वो भी आपका इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इस केस में हमारा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और डिजिट है। इस केस में कितना हुआ, ये तो आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो गया बट 2 है। इस केस में हमारा क्या है, 2 है। 0 इन द केस ऑफ डेसिमल नंबर्स, 0 विच इज कमिंग आफ्टर दिस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ देखो ये आपको जो 0 है वो नॉन 2 के बाद आ रहा है, तो ये आपको सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 2, यहाँ पर कितने हो गए 1, यहाँ पर कितने हो गए 2। तो द लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो क्या है हमारा, 1। मेरे फाइनल आंसर में भी कितना आना चाहिए, 1। तो हम यहाँ का क्या लिखेंगे, 0.8 है। अब हम यहाँ पे करेंगे राउंडिंग ऑफ, ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हम ड्रॉप करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 0.11। ठीक है, हमें निकालना है आंसर इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। सो यहाँ पर हमारा 0.11 हो गया, 1 हम ड्रॉप कर देंगे बिकॉज इट इज लेस देन 5 एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 0.1 seconds. So this is the mean absolute error. Okay, now we have to find the relative error and the percentage error, but before that I will also I would like to discuss what will be the time, the range of the time period of the pendulum. So मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा यहाँ पर आ गया 0.1 सेकेंड इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ टाइम पीरियड ऑफ द रेंज ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ पे रेंज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.62 and what was the error, plus minus 0.1 seconds। यहाँ प्लस माइनस 1 क्यों लिखा, बिकॉज ये एरर है। एरर का मतलब ये है कि इस रीडिंग से 0.1 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.1 कम भी हो सकता है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसमें माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज लेट्स से 2.62 माइनस करना है हमें 0.15 सो ये हो गया 2.5 एंड आपका ये हो गया 2। So the range will be from 2.52 seconds to, इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, दैट इज 2.52 से लेके 2.72 सेकेंड्स। ये आपका
रेंज हो गया टाइम पीरियड का, बिकॉज द एरर इज 0.1 सेकेंड, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.1 सेकेंड. सो द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम विल कैन रेंज फ्रॉम, ये मिनिमम वैल्यू इसकी 2.52 हो सकती है और मैक्सिमम आपको 2.72 भी हो सकती है. ये मैं इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है क्योंकि कभी कभी आपको ये इसके बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो ये तो हो गया रेंज हमारा. अब आते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, अगर ये आप इस यहाँ पर हमारा है 2.62 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करें इस नंबर को, अगर एज पर द रूल्स इन द सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने पढ़ा है ना, कि अगर आपका जो अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट क्या है यहाँ पे, जो लास्ट जो डिजिट होता है वो हमारा अनसर्टेन डिजिट. तो अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है, ये 5 से कम है, तो हम इसको जो है सिंपली ड्रॉप कर देंगे. तो हमारा आंसर, वी कैन ऑल्सो राइट दिस आंसर एज 2.6 प्लस माइनस 0.1. This can also be written like this. This is also correct, I'm not saying, but if we are applying the law of rounding off, then the answer can also be written as 2.6 plus minus 0.17. Okay. So अब हमारा आता है next point is we have to calculate the mean absolute relative error. So relative error क्या होता है? Relative error is equal to mean absolute error, which was 0.1, divided by the mean value or the true value. But here is the mean value was हमारा 2.62. ठीक है, तो this is the relative error. और अगर हम इसको करते हैं तो I think इसका आंसर आता है 0.0419. ठीक है, ये शायद ये आंसर आता है. अगर हम इसको अभी डिवाइड करेंगे, आई हैव द कैलकुलेशन हियर आल्सो, जस्ट वेट, आई वांट टू सी. ओके, अभी है. सो 0.1 डिवाइडेड बाय 2.62. So the answer is the answer is 0.1 divided by 2.62, which is equal to 0.0381. Sorry, it is 0.0381. ये तो हो गया आपका रिलेटिव एरर है. अभी परसेंटेज एरर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर हमारा कितना हो जाएगा? विच इज इक्वल टू इंटू 100 करना है इसको. 0.0381 इंटू 100. नाउ सॉरी, यहाँ पर अभी हमको एक चीज़ और करनी है, हमने करना भूल गए. एज पर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर हमारा 0.1 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज हाउ मच? 1. यहाँ पर हमारा कितना है? 3 है. फाइनल आंसर में हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए? इट शुड हैव ओनली 1. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये अब हम अगर ये लास्ट है, दिस इज द अनसर्टेन डिजिट, इसको ड्रॉप कर दिया. 8 है, ये हमारा 5 से बड़ा है तो इसको हमने बढ़ा दिया, ये हो गया 4. तो आंसर मेरा हो जाएगा 0.04. 0.04 में मेरा सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. और हमने यहाँ पे क्या किया? वी हैव अप्लाइड द रूल फॉर कैरिंग आउट द अरिथमेटिक ऑपरेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर. रूल क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी निकालते हैं यूजिंग 2 और मोर दिस वेरिएबल क्वांटिटीज, तो उस केस में जिस भी वेरिएबल क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होती है, वही उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी फाइनल आंसर में होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर का जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारे 1 है, इसके अंदर यहाँ पे 3 है. तो फाइनल आंसर में हमारा क्या होना चाहिए? 1 ही होगा, बिकॉज वी हैव टू गो विद द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
which is associated with any measurement. So ये हमारा आंसर हो गया 0.04. So the percentage error कितना हो जाएगा? परसेंटेज एरर हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे विच विल इक्वल टू 4%. So the percentage error is equal to 4%. Relative error is equal to 0.04 is equal to 0.04 what? This is equal to it is equal to 0.04 होगा. इसका आपका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. रिलेटिव एरर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. एंड द रेंज ऑफ द टाइम पीरियड भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया. दिस इज इक्वल टू 2.52 से लेके 2.72 सेकेंड है. ठीक है, इसको आप राउंडिंग ऑफ करके ये भी लिख सकते हो. इफ़ यू वांट टू राउंड इट ऑफ विच विल नॉट बी रॉन्ग. दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इसमें क्या राउंडिंग ऑफ में क्या है? दिस इज द अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5. सो दिस इज द अनसर्टेन डिजिट विच इज लेस देन 5. वी कैन राइट इट 2.5 सेकेंड से लेकर 2.7 सेकेंड्स. ये भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने जो सिंपली दो को ड्रॉ कर दिया. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द absolute error, mean absolute error, relative error and the percentage error. But in these type of questions, the laws or the rules of the significant figures are also applied. Similar at the same time जो rounding off का जो concept है वो भी यहाँ पे apply होता है, वो भी आपको करना है. बट द जो रूल्स हैं हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आंसर अभी अगर मैंने यहाँ पर इसको रूल अप्लाई नहीं किया होता तो आंसर गलत है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दी रीडिंग्स मच मोर सिंपलर इन नेचर वी अप्लाई द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये नंबर ऑफ डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स को हम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में इसमें लेके आते हैं सो दैट द वैल्यू ऑफ द आंसर see the value of the answer is very very precise here, but here the value of the answer is also precise, and we have just squeezed this value in a more you can say a simpler or you can in a simplified way so that the final answer में भी आपका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो एक कम से कम हो. तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट रूल्स रूल फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स को यहाँ अप्लाई किया है. इससे हमने AM निकाला है. इसके बाद में हमने ये एब्सोल्यूट एरर भी निकाला है. और यहाँ पे भी हमने दिस रेंज ऑफ टाइम पीरियड भी निकाला है. उसमें भी निकालने के बाद में हमने रिलेटिव एरर निकाला. इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं दैट इज रूल्स हैं वो हमने यहाँ अप्लाई किए हैं. एंड देन वी हैव फाइनली कैलकुलेटेड द परसेंटेज एरर. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये इस क्वेश्चन से आपको मीन्स दिस इज द इसी एक क्वेश्चन से यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एब्सोल्युटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम. द ओनली थिंग इज दैट अगर आपको रीडिंग्स दी गई है 5 तो आपको मीन निकालना है. नहीं तो अगर आपको ट्रू वैल्यू दी गई तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना है आपको? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. उसका मॉड करना है. नेगेटिव है तो नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है. अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के आपके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर खाली आज रूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा. या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में इसमें 3 रूल्स आते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब ये है कि मान लीजिए पहला मैं आपको रूल ही लिख देता हूँ, उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. when two quantities are added or subtracted, to
get uh, when two quantities are added or subtracted to get a final result, then the error in the final measurement or the final result is equal to the sum of absolute error of sum of absolute errors of the individual quantities. ठीक है? When two quantities are added or subtracted to get a final result, then the error in the final result is equal to the sum of the absolute error of the individual quantity. That is, let us say there are two, the final result is Z, and the two physical quantities which were added to get the final result is A and B. अगर मानते हैं if delta A जो है, this is the absolute error of A, ठीक है, absolute error of A, और डेल्टा B जो है absolute error of B है, तो और डेल्टा Z जो है this is the absolute error of the final result. ठीक है, ये है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट. तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा Z will be equal to delta A plus delta B, and this is the maximum error in the measurement of Z. ठीक है, delta A, this is the maximum error in the measurement of Z. Now, so mathematically we could also write down as that Z plus delta Z क्या हो जाएगा, Z is equal to A plus B. ठीक है, प्लस माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों लगा रहा हूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ. ये हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B. क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एरर जो है ना, ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करके हमने Z निकाले तो Z आ गया. Z, ये डेल्टा Z जो है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ Z हो गया, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ A एंड B. ये आपके मैक्सिमम एरर हो गए. दिस इज द मैक्सिमम एरर ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ A एंड दिस इज द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B. ये प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है बिकॉज एरर जो है वो आपका A प्लस B से, because error is a deviation, so that deviation can be more than A plus B, and at the same time it can be less than A plus B. It is a deviation. So जो measured value है A plus B, जो इसकी वैल्यू आई है, ये जो आपकी Z की है, Z की वैल्यू A plus B है, तो इस वैल्यू से एरर जो है मेरा डेल्टा A प्लस डेल्टा B ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, बिकॉज एरर इज अ डिविएशन. तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ठीक है, ये तो फर्स्ट रूल हो गया. सो ये फर्स्ट रूल हो गया. नाउ सेकेंड रूल पे आते हैं. सेकेंड रूल कहता है when the two quantities are multiplied or divided, when quantities are multiplied, मैं ऐसे साइन कर देता हूँ, और divided, then the relative error then the
relative error in the final result, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रूल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ relative errors of the this individual what say quantities. ठीक है, when two quantities are this is the I've just written it in short, that is I've not written multiplied. This is a sign of the multiplication and this is a sign of the division. So when two quantities are multiplied or divided, then the relative error in the final result is equal to sum of the relative errors of the two physical quantities. So mathematically हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Let us say z is equal to a into b. So what is the relative error? Relative error is the mean absolute error divided by the true value. So mean absolute error, that is delta z divided by z, is equal to delta a divided by a plus delta b divided by b, where delta z, delta a and delta b are the you can say are the absolute error of the individual quantities. Delta a is the absolute error of the measurement A, delta b is the absolute error of measurement B, and delta z is the absolute error of the final result. So this is an important formula, that is delta z by z will be equal to delta a by a plus delta b by b. This is a very very important rule. The third one is the relative error in a physical quantity raised to the power k. The relative error in a physical quantity raised to the power k is k times the relative error in the individual, k times the relative error k times the relative error in the individual quantity. ठीक है, so here if I am just taking one, let us say z is equal to a to the power p, b to the power q and c to the power r. This is a final result which is a multiplication of three physical quantities, a to the power p, b to the power q and c to the power r. Then if delta z upon z will be equal to p delta a upon a plus q delta b upon b plus r delta
C upon C. Okay. Now A to the power P means A is being measured P times. B is to the power Q means B is measured Q times. So here what now this is what, this is the relative error. This is the relative error. Percentage error करना है तो क्या हो जाएगा? It will be Z delta Z by Z into 100. You will multiply 100 on both sides. So you will get the P delta A upon A into 100 plus Q, ये हो जाएगा डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R, ये हो जाएगा डेल्टा C अपॉन C इंटू 100. ये आपका हो गया परसेंटेज एरर, ये आपका हो गया रिलेटिव एरर. सो A टू द पावर P का मतलब है कि A इज बीइंग मेजर्ड P टाइम्स, कि B टू द पावर Q मीन्स B इज मेजर्ड Q टाइम्स. तो जितनी ज़्यादा आप बार इसकी मेजरमेंट करोगे तो एरर तो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. अगर एक बार किया ठीक है, जब आपने 2 बार किया तो एरर क्या है आपका 2 बार ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स. अगर 3 बार मेजर किया तो वो एरर आपका 3 गुना हो गया, बिकॉज आपने 3 बार मेजर किया है, तो वो आपका 3 हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई वी राइट इट हियर एज इफ टू द पावर P मीन्स अगर ये आपका 2 होता तो यहाँ पे हमारा 3 होता तो ये 3 हो जाता. तो जितनी ज़्यादा हम मेजरमेंट करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके जो एरर्स हैं वो एडअप हो जाएंगे. इसका मतलब ये है. सो डेल्टा Z अपॉन दिस इज द रिलेटिव एरर. सो इफ Z इज इक्वल टू A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर R, देन रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा Z डिवाइड बाई Z इज इक्वल टू P डेल्टा A अपॉन A, ये प्लस Q डेल्टा B अपॉन B प्लस C प्लस R डेल्टा C अपॉन C. ये आपका रिलेटिव एरर हो, ये आपका परसेंटेज एरर हो. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 7, वी विल डू नियर अबाउट 3 or 4 questions on the combination of errors, so that and I will be trying to cover up those all the different types of questions which has been asked in the previous board and the NEET examination. कोशिश ये मैं करूँगा कि इस एक सेशन के अंदर जो भी 4 क्वेश्चंस करूँ मैं, वो सब डिफरेंट हो और वो ऐसे क्वेश्चन हो जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड very very shortly. Until that time, have a nice day and see you very soon.